Harsh Rajput from Rose Public School, Suleli. So today I'm going to begin the session with the topic Rebellion in the Forest. In the previous session we had covered why deforestation. In that we had studied that in what way British policies were basically responsible for the occurrence of an deforestation, what were their motives, and and at what extent they were responsible for the deforestation. And then we had studied about the next topic we had covered rise in commercial forestry. In that we had come to know about in what way the management of forest had been carried out by the Britishers, especially to fulfill their objective related to attain maximum amount of profit from the forest resources. So today what we are going to start is today what we are going to discuss, that is about the rebellion in the forest. Okay, now rebellion मतलब विद्रोह, ठीक है. अब जंगल में जो विद्रोह हुए थे, जो उत्पन्न हुए थे, अब ये तो समझना बहुत आपको obvious है. It's very obvious to understand that कि basically because of the new rules and regulations, the new act and the forest services that was through that the Britishers had rendered the services of forest guards who were assigned a duty to protect the forest, especially from the to avoid trespassing of the local peoples in the forest regions. So by the enactment of all these new policies, new system, the livelihood of the people who were completely depends upon the forest was affected. And that had caused a resentment in the people living in the forest, the tribal people who were living in the forest. It became a core reason of their resentment. Basically, the people who were living in the tribal regions, they had a belief. They were very close to the nature. Their livelihoods and their style and their way of living, their customs, their beliefs, their practices of sustaining their livelihood, for the sustainment of their livelihood was completely depends upon the nature. They are very close to nature. So, and they are also very possessive, especially about the possessive about the safeguard interest of their customs, their practices and all that. They had their own traditional practices, they had their own traditional rules and regulations which they had been followed since from their ancestors time. So because of the interference of Britishers, as these things were affected, so that was not accepted by the tribal people at some part of the region, what you can be say in a very favorable way, in a very agreeable terms and conditions which the Britishers had imposed in front of them. तो इसलिए उस समय जो था, अब ये लोग जो हैं ये प्रकृति के काफ़ी क्लोज थे और इनके कुछ अपने नियम थे. जैसे इनके ऐसे नियम बनाए हुए थे, जैसे सपोज करो इनका ये मानना था कि भगवान ने, नेचर ने उन्हें यहाँ पर इन नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए उनकी ड्यूटी लगाई हुई है. इनके कस्टम और बिलीफ्स जो हैं वो इनको इस तरह से प्रेरित किया करते थे. तो उसके तहत इनको ऐसा, ये अपनी एक ड्यूटी मानते थे, ये अपनी इनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था. ठीक है, अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करनी, अलग अलग एग्रीकल्चर जब क्रॉप प्रोडक्शंस होती थी, जब फसलें पक जाती थी तो उस समय इनके अपने फेस्टिवल्स होते थे. उन फेस्टिवल्स में एज ए गिफ्ट
जो ये ऑफर किया करते थे भगवान के नाम पे, अलग अलग भगवान को चढ़ाना। तो इस तरह के जो इनके बिलीफ्स थे, इनके कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनकी जो मान्यता थी, ये अपनी थी, उन मान्यताओं के प्रति बहुत ही वफादार थे, बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव थे। और इन्हें किसी बाहर के व्यक्ति ने, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू किया, इनके उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अफेक्ट करना शुरू हुआ, तो इन्होंने उन चीज़ों को, उन नई कंडीशंस को बिल्कुल एक अपनी सहमति बिल्कुल नहीं जताई उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। और इसका नतीजा ये हुआ, हालांकि इन ट्राइबल रीजन्स, ये फॉरेस्ट रीजन्स में जो थे, यहाँ पर कोई एक ही ट्राइब नहीं रहती थी, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल्स रहती थी, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दैट, जैसे संथाल परगनाज में, ठीक है, वहाँ पे अलग ट्राइब्स थी। आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी, जिनमें हलवास, माना, भतरास, मुन्ना, मारिया गोंड्स और ध्रुबास, ये बड़ी फेमस ट्राइब्स हुआ करती थी, ठीक है। और ये सभी ट्राइब्स जो हैं, बेसिकली इन सभी की लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी वो बिल्कुल डिफर थी। लेकिन उसके बावजूद भी डिफर इन द सेंस कि मतलब दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, लेकिन इनका अपनी प्रकृति के साथ जो ट्रीटमेंट था, जो भी इनके कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। लेकिन अब ये सभी ट्राइब्स जो हैं, जब ब्रिटिशर्स ने नई कंडीशंस और रूल्स लागू किए, तो ये सभी ट्राइब्स जो हैं, दे फेल्ट नीड टू बी गेट मतलब यूनाइट, और उन्होंने इकट्ठे होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। और उस आवाज़ का नेतृत्व जो था, एक बहुत ही ट्राइबल हीरोज रहे हैं, रेवोल्यूशनरी रहे हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इस तरह से इनके अपने इन सभी की अपनी अपनी, इन्होंने अपने जो अपने जंगल हुआ करते थे, जो अपना एरिया होता था, उस एरिया को इन्होंने खुद ही एक डिमार्केट किया हुआ था, ठीक है। उस एरिया को डिमार्केट करके रखते थे। कोई भी व्यक्ति जो है, जब अगर एक विलेज से दूसरे विलेज में, अब बोलते नहीं जाते थे, ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू बी इंटरफेयर इन ईच अदर्स एक्टिविटीज दैट आर बेसिकली बीइंग अटैच्ड टू देयर लाइवलीहुड्स। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कभी इन्हें कोई चीज़ की शॉर्टेज पड़ती थी और इन्हें किसी दूसरे गांव पे उसके लिए डिपेंड होना पड़ता था, उसके दूसरे गांव से लेनी होती थी, तो इन्हें चाहे कोई लकड़ी है, कोई भी सामान है जो फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, तो उस सामान को लेने के लिए दे हैड टू पेड अ स्मॉल फीस, ठीक है। उस फीस को वो बोला जाता था देवासरी या दंड, ठीक है, देवासरी या दंड, ठीक है, ये नाम दिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो हैं, ये नेचर से काफ़ी अटैच थे, और इनकी जीवन यापन का सारा प्रक्रिया, तरीका, क्रियाएं और प्रैक्टिसेस पूरी की पूरी जो है वो नेचर से ही जुड़ी हुई थी। और इसीलिए ये ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस को इन्होंने बहुत ही आसानी से इन्होंने उसको, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह थी कि विद्रोह की संभावनाएं उत्पन्न हुई, और अलग अलग प्रांतों में, जैसे सपोज करो मैंने बताया आपको कि जो बस्तर रीजन था, बस्तर जो रीजन जो था, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में पड़ता था, ठीक है। यहाँ से इंद्रावती रिवर दैट गॉट टू बी फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इंद्रावती रिवर यहाँ से फ्लो करती थी। और ये जो बस्तर रीजन था, इट हैड कवर्ड अ वास्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ की जो एक्टिविटीज थी, और इस एरिया में ही, इस बस्तर रीजन में ही विद्रोह जो है वो काफ़ी एक इंटेंस रूप में देखने को मिला। जो मतलब ट्राइबल स्ट्रगल था, जो ट्राइबल रेवोल्यूशन था, अगर उसको हम बहुत ही इंटेंस फॉर्म में देखते हैं तो वो इस रीजन में काफ़ी उसमें देखने को मिला, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज थे यहाँ पे, ट्राइबल्स जो रेवोल्यूशंस थे वो काफ़ी मतलब
उनका रेवोल्यूशन जो उनका इम्पैक्ट जो है वहाँ के लोकल्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी पड़ा। और आज भी उन सभी की जो वीर गाथाएं हैं, उनके जो एक तरीका था उस विद्रोह को नेतृत्व जो किया था, जिन्होंने उनके हीरोइज्म को आज भी लोकगीतों और लोक कहानियों के तहत वहाँ के लोकल्स में गाया जाता है, सुनाया जाता है, ठीक है। और आज की नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन उनके हीरोइज्म की जो टेल्स हैं वो अलग अलग मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं बताई जाती हैं। तो इनमें संथाल प्रगनास में सिद्धू और कानू, ठीक है, ये दो ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज काफ़ी फेमस थे, ठीक है। और इन्होंने संथाल प्रगनास में इन्होंने वहाँ के जो आदिवासी थे उनके विद्रोहों को इनका नेतृत्व किया था। I had already explained to you that in Chota Nagpur Plateau regions, especially in the Bastar regions, ठीक है, the unification of all the tribes, ठीक है, and then successfully under the command of Birsa Munda, ठीक है, these tribes had given a stiff मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी इनको इस विद्रोह को बिल्कुल शांत करने के लिए। दे हैड टू armored a huge army, they had used huge army especially to crush this revolution that was led by the Birsa Munda. Then आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश रीजन में भी वहाँ की जो ट्राइबल्स जो कम्युनिटी थी उनको जो है एल्यूरी सीतारमन राजू, ठीक है, उनके नेतृत्व में रखा गया था। तो ये सब उस ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी ये उनके आज भी उन्हें एज ए हीरो उन्हें उन लोकल एरियाज़ में जाना जाता है। उनको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उनकी लोक कहानियाँ, लोक गीतों में उनकी जो हीरोइज़म है उसको सुनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रेबेलियंस थे ये हुए, ठीक है, अगेंस्ट द पॉलिसीज दैट वाज बेसिकली इनेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतने दे रहा हूँ, ठीक है। आज हम यहीं पे कंक्लूड कर देंगे, ख़त्म करेंगे इस सेशन को। यू बेटर टू रीड इट आउट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं इस पोर्शंस में से क्रिएट होते हैं, जैसे विच रिवर फ्लोज इन बिटवीन द बस्तर रीजन, ठीक है, बस्तर रीजन के कौन सा पार्ट में और कौन सी बाउंड्री टच होती थी बस्तर रीजन्स की, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे वो स्मॉल फिश जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता था, कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। सो यू बेटर टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस एज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट covering the whole topic of it in this session. So you better to read it out. So in the next sessions we would continue with the fears that are basically attached to the tribal people that had basically become a cause of their resentment and later on had taken a shape of rebellion. So far you better to read it out, read the chapter thoroughly and very properly and in a very comfortable manner, okay, and with sincerity. Okay, thank you.